If we talk about one more state, say one more case, or I would say कि one more complaint जो आज की डेट पे बहुत ज्यादा आ रही है, it is about relationships. Like लोग काफी टाइम से घर में है, जो उनका डेली रूटीन है, that has not been fulfilled, or that has been actually disturbed in a way or two. तो जो personal relations है, उन पे काफी impact आया है. एंड इफ वी टॉक अबाउट रिलेशंस, तो स्पेशली एक पेरेंट और बच्चों के बीच का जो रिलेशन है, वो भी काफी हद तक हिंडर हुआ है. एंड यू नो दैट हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ गैप. लाइक एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक तरीके का गैप आ गया है. So will you like to share something from your experience, like what kind of advice, or what kind of routine, or anything, or जो जिस तरीके से आपने अपना चाइल्डहुड देखा है, उस तरीके से अगर आप उसमें से कुछ एडवाइस देना चाहें आज के जनरेशन के पेरेंट्स को या आज के जनरेशन के बच्चों को, व्हाट वुड बी दैट? क्वेश्चन इज फॉर मी और राजीव सर? नो, ऑफ कोर्स फॉर यू. या हाँ जी. आई थिंक लॉकडाउन में मैंने काफी स्पेंड टाइम किया अपनी वाइफ और मॉम के साथ. तो एक्चुअली इट हैज वर्क इन आवर फेवर दैट सब लोग अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, इतना टाइम कोई इकट्ठे स्पेंड नहीं करता. सो आई थिंक तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि हम फैमिली के साथ वी विल एबल टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. पेरेंट्स और बच्चे, ऑब्वियसली द बॉन्ड इज, वो जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं मेरे हिसाब से, उस टाइम पे पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है. लेकिन मेरे केस में माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज ही वांटेड मी टू बिकम he wanted me to play for India. So my father was very strict in those times. So my father was more of a coach than a father at times. So I think because he wanted to achieve a certain dream through me, probably that was his vision. But I think I would, as a parent, would encourage my children to play or study and do whatever they want, which makes them happy. But definitely, look for a career in that. But I would not force my children to, play a certain sport or, do a certain degree. I would encourage them to do well in life and find their own path. But I will not force them to do something that they don't want to do. But sometimes the parent sees that this is the best for you, so that is also very important. So I think it has to be a right balance between parenting, and times have also changed a lot. When we were growing up, parents were very strict. आज parents थोड़े lenient हो गए हैं because social media से awareness काफी बढ़ गई है. So I think आज के parents थोड़े कम strict है, which is a good thing, but also it's important to keep a check on your children as well. राइट. राजीव जी, इस मैटर में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपके पास तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है. Well, picking threads from your question, I mean, recently I read a survey in which predicted that the number of divorces will go up, will rise. I'm not able to figure out why. Now you've got time to spend with the family. If you are not keeping good relations with your wife, try to improve that. And if you are keeping good relations, be intimate more. So where is the question of divorces? Actually, people should build the relationship with the family members. This is high time to take advantage of that. As in the beginning, at the outset, I had said that you should find an opportunity out of this crisis. Why you should, unnecessarily relationship with your family members? कई लोग ऐसे मिल जाते हैं मुझे कि यार छट गए, बहुत बोर हो गए दिन भर बीवी के साथ बैठे बैठे. मैंने कहा इसका फायदा लो, बोर क्या हो गए. तो ये होता है लोगों में, जैसे कि जो है हमारे मतलब हमें तो बहुत इसका एडवांटेज मिला साथ रहने का, मम्मी के साथ या पत्नी के साथ. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए. इसमें लोग इस तरह की बात करना कि इस तरह के वीडियो में देखता आ रहा हूँ कि डीएम साहब हमें कैसे जो है घर से बस निकालो, घर में तंग आ गया हूँ, बीबी बर्तन धुलवा रही है, मतलब वो बना बना के झूठ की लोग है ना.
इससे जो है ये इससे लोग जो है उससे और उल्टा असर जाता है। तो मेरा मानना है कि लोगों को इसको फायदा लेना चाहिए। अगर आपका अच्छा है तो उसको और बढ़ाइए, और अगर जो ठीक नहीं है तो फिर जो है ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी है जब आप खुश करके ही करके अपने घर में शांति कर सकते हैं, रिश्तों को ठीक कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये जो है लोगों की भावना, हम जो है ये रिश्ते इसमें खराब हो रहे हैं, मैं इससे कतई सहमत नहीं। इसको और ठीक करना चाहिए, इसका फायदा इस अवसर का लेके हमें जो है सक्रियता लेनी चाहिए। जहाँ तक ये है कि आप ऊपर कोई इसमें मुसीबत आई, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपकी नौकरी चली गई या कोई दिक्कत आया, बिजनेस ठप हो गया, तो मेरे ख्याल से वही जो हरवंश राय बच्चन जी कहा करते थे कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि कौन जानता है कि नेचर ने या भविष्य में क्या चीज आपके लिए कौन सी चीज छुपा के रखी जो आपको बाद में मिल जाए। तो इस भावना के साथ आपको प्रेरित होके, इनकरेज होके और जो है अपने अंदर ऑप्टिमिस्टिक बन के आगे देखना चाहिए, बजाय इसके कि घबराने के, और इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। Right, very well said. युवराज जी, I have a last question for you. It's Yes, because ma'am. अगर हम लोग आज की बात करें तो you have been idol for so many people, including youth and those who are growing up or those who have grown up. So you have somehow motivated them in a way which is very positive. And considering the current scenario right now, what would be your piece of advice or your share of experience with them? Well, Keeping mental my health in mind, of course, yes. my piece of advice would be, because for children and the younger generation is even difficult to sit at home because there you have so much energy inside you and you want to go out and play or you go out, whatever you want to do, what you do in your daily life. तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही होगी. I just want to tell them that have patience because at a young age you have very less patience. You want to do 10 things in a day. I just want to tell them that have patience. Things will go back to normal. Find something to do which you'll be proud of when the whole lockdown is over. Look to create something which you will never think about when you're out and about. Or maybe it's a different hobby, or maybe it's a certain project. Look to have a vision in your life where you can follow that path. So when things go back to normal, you're all guns blazing to achieve that goal. So that would be my advice to young children. I would also advise them to love their parents, uh, you know, uh, or grandparents because for elderly people the disease is very fatal, and it's important that as children we take care of our parents or our grandparents and love them to the fullest. Beautiful. राजीव जी, आप किस तरीके से इसको एड्रेस करना चाहेंगे? I fully endorse the views expressed by Yuvraj Singh that the children, the other people, they should respect their family members, they should remain active. बल्कि मैं तो यहाँ कंचन जी भी कहना चाहूँगा कि ये पार्क और ये सब बिल्कुल बंद नहीं रखने चाहिए। जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वो बंद रखे, बिल्कुल गलत बात है। सबसे ज्यादा तो न्यूयॉर्क में था, और मेरे एक दोस्त बिल्कुल ट्रम्प टावर में रहते हैं जिनके सामने सेंट्रल पार्क है, वो कह रहे थे हजारों लोग सेंट्रल पार्क में डिस्टेंस बना के, जो एक सोशल डिस्टेंस वो बना के रोज एक्सरसाइज कर रहे थे, दिन भर दौड़ते हैं लोग। तो यहाँ भी सब पार्क वगैरह अलाउ करना चाहिए। बच्चे को जैसे कि यू बोल रहा है कि उनके अंदर एनर्जी होती है, दे कांट सिट एट होम, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू प्ले, सो दे शुड बी अलाउड टू गो टू द पार्क्स। सर, पर हमारे लोग सुनते भी कम है ना। हैं? हमारे लोग सुनते भी कम है ना। हाँ तो ये मानते नहीं, जबरदस्ती लॉकडाउन में मतलब थोड़ा क्या पार्क बंद कर दो। पार्क में तो ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग, वो आप नाम लगा दो कि भाई दोनों के बीच दूरी से आप वॉक करिए, इतनी दूरी से आप दौड़िए या और मास्क लगाइए। तो ये सारे तो समझ में आए। ताला लगा देना ये तो ठीक है, लॉकडाउन में तो थोड़ा कि हर जगह आपने ताला लगा दे, कहीं कोई जा नहीं सकता। ये जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन है, इसकी डिफिनेशन बदलनी पड़ेगी लॉकडाउन की हमें, और उसके साथ नॉर्मल एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी, साथ साथ पूरे प्रिकॉशन लेके। तो इसलिए जो है मेरा ये कहना है कि आप लोग अपनी जो एक्टिविटीज है, फिटनेस की जो ये है उसका भी तौर तरीका करिए, मेंटली भी स्ट्रांग होइए, और साथ साथ आशा मत छोड़िए।
जो आपका ऑप्टिमिज्म लेवल है वो बढ़ा के रखिए। सब होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपके साथ भी अच्छा होगा। यही बस जो है भगवान से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, सबसे यही जो है आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि वो सब जो है हालात को ठीक करें और आप अपना धैर्य मत खोएं, संयम मत खोएं, आशा मत छोड़ें। परफेक्ट। आई थिंक आज के टाइम को माइंड में रखते हुए आप दोनों की तरफ से जो भी एडवाइसेस आई है या आप दोनों ने अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है शेयर किया है, उससे काफी सारे लोगों को काफी हद तक बेनिफिट तो होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो आर वेरी नेसेसरी फॉर current timing. So with this, I would like to end up our conversation here, and I would sincerely like to thank you both for joining us, being a part of this conversation. Thank you, Yuvraj ji. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Kanchan, for organizing it. You And for coming. Thank you, sir, for always